गाइस आपने नोटिस करा होगा कि कोई भी ऐसी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन जहाँ पे गोरे या नॉन इंडियंस इन्वॉल्व है, वहाँ पर जैसे ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट उभर करके आता है, एक तुरंत इमीडिएट रेसिस्ट रिस्पॉन्स निकल करके आता है वहाँ से। वेल नोन प्लेटफॉर्म्स, प्रेवलेंट प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे ये चीज़ें थोड़ी कम होती हैं बिकॉज दीज आर मोर पॉलिटिकली करेक्ट प्लेटफॉर्म्स। बट इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ रेडिट, 9gag एंड सच अंडरबेली प्लेटफॉर्म्स, आपने ये बिल्कुल नोटिस किया होगा। साथ ही साथ एट एन इंडिविजुअल लेवल तो पजीत, स्ट्रीट शिटर्स एंड दिस कंट्री, ये सब कहलाना बहुत ही नॉर्मल है। बट इवन एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, इवन ग्लोबल मीडिया हाउसेस डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग अ डिग व्हेन एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ। सो हाउ डिड इंडियंस बिकम द ग्लोबल पंचिंग बैग ऑफ द इंटरनेट? राइट, अभी आपने नोटिस करा होगा कि जब गुकेश बीट मैग्नस कार्लसन, सो इंस्टेड ऑफ दैट 19-year-old kid getting the appreciation, he was thrown in with like racist comments and slurs online. फिर आपने अभी देखा होगा कि हर 3-4 महीने पे too many Indians करके ट्विटर पे एक हैशटैग चल जाता है। देन अगेन रिसेंटली एक वीडियो आया था जहाँ पे दिस white dude was just like going on a unprovoked rant against an Indian ki bhai go back Indians, whatever, he just went on it. Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay? I want you to go back to India. So, not only has this been prevalent, but this kind of behavior has significantly increased over last few days, be it in the form of casual racism, individual racism, या in form of visa bans and deportations. So something has changed in recent times, and I want to figure out what that is. So just to give you some examples, some of the things that Indians are facing globally at this point in time, उसके कुछ मैं आपको example के through clarity देने की कोशिश। Crimes against Indians in Canada has increased 143%. Right, these not only include crimes done by Khalistani groups but also through white Canadians. Right, X और Twitter, उसके प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे तो ब्लू टिक्ड अकाउंट्स के थ्रू एकदम ब्लेटेंटली रेसिस्ट कमेंट्स आते हैं एंड ट्विटर डज नथिंग अबाउट इट. लाइक आई पर्सनली बिलीव दैट इट बेसिकली प्रमोट्स इट बिकॉज ट्विटर मेक्स इट मनी थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इंस्टिगेशन, बट इफ इट डजंट देन एटलीस्ट इट डज नथिंग टू कर्ब इट. ऑन टॉप ऑफ दैट इंडियंस आर पोर्ट्रेड एज नर्ड्स, स्ट्रीट शिटर्स, स्कैमस्टर्स बिकॉज ऑफ द स्कैमिंग कॉल सेंटर, एंड ये एक रेकरिंग थीम हो गया, चाहे वो मूवी हो जाए, चाहे वो आप यूट्यूब के स्किट और गिग्स देख लें, इन सब के ऊपर एक बहुत ही रेकरिंग थीम है. एंड दिस reinforces the image that Indians have globally. We have gone from being the model minority to being invaders in a matter of few years, and it's not just white Americans, right? We see racist comments and racist videos being made from Chinese, Koreans and African content creators as well. Bro, Africans और Chinese हमें बोल रहे हैं that we are street shitters, like really bro? So what's fueling this hatred? देखिए बात ये है कि hating Indians and pagans is a very core Christian value. It is part of their culture, it is part of their heritage. तो and since most of the world is of the Abrahamic faith, इट कम्स वेरी नेचुरली टू देम. मतलब उनके लिए एक ट्री वर्शिपर, एक रिवर वर्शिपर को हेट करना और उसको एक निचली निगाहों से देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है. इनफैक्ट ये बहुत नेचुरली आता है उनके लिए, राइट? On top of that, they have been the rulers of this world for past 1000 years. Like since Roman Empire, अगर आप देखें तो they have been killing and committing mass genocides of people on the basis of calling them barbaric, on the basis of calling them pagans, right? So they have been the rulers of this world for 1000 years, and ये बात उनसे नहीं पचती कि कोई ब्राउन कंट्री जो है इस समय उनके सामने ग्रो कर रही है और उनसे आंखें लड़ा करके बात कर रही है, जो कि पिछले कुछ साल में इंडियंस कर रहे हैं. आपको याद होगा विवेक रामास्वामी was a major Republican face during Trump's recent election campaign. बट जैसे ही ट्रम्प चचा जीते वैसे ही पहले विवेक रामास्वामी को डोजे में भेजा गया और उसके बाद उनको रेलिगेट कर दिया. भाई, विवेक रामास्वामी is one of the smartest people that Trump had in his campaign, एंड उसको रेलिगेट कर दिया गया. क्यों? बिकॉज विवेक रामास्वामी ने बहुत ही क्लियरली अपनी हिंदू और इंडियन कल्चरल रूट्स को एक्नॉलेज करा. हालांकि उसने बात कही कि ये मेरा पर्सनल मत है, बट आप ये समझ लें कि इन अमेरिका, इन अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट नेशन लाइक अमेरिका, ये
चीज कभी उनको एक्सेप्ट नहीं होगी, स्पेशली इन रिपब्लिकन पार्टी सेटिंग में तो कभी नहीं होगी। और ये तो मेरे साथ ही कई बार हो चुका है यार, लाइक दिस हैज हैपेंड टू मी इन माय ओवरसीज ट्रिप। मेरे बगल में एक वाइट डूड चलता रहेगा, उसकी नाक बह रही, उसने अपने शर्ट से पोंछ ली, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे हाथ में आइसक्रीम अगर एक ड्रॉप गलती से गिर जाता है, तुरंत दिस वाइट लेडी विल कम एंड वी लाइक सर प्लीज ईट प्रॉपर्ली एंड एंश्योर दैट इट डजंट स्पिल एंड इफ यू कांट मैनेज इट हियर्स अ नैपकिन फॉर यू। एकदम तुरंत फटाक से कमेंट निकल करके आता है, राइट? सो इट्स नथिंग लाइक ईच वन ऑफ अस हैज फेस्ड दिस वेदर इन रियल लाइफ और ऑनलाइन। तो जो क्रक्स ऑफ द मैटर है वो ये निकल करके आया है कि इंडियंस हैव बिकम reasonably powerful. We have become the fourth largest economy in the world. हमारा military power on the ascent है और अब हम एक दबे छुपे colonial post colonial nation की तरह नहीं बात कर रहे हैं इनसे, अब हम as an equal बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात इनको बहुत ज़्यादा खटकती है कि भाई ये कल के आया हुआ देश, this friggin street shitters, ये हमसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, these pagans, ये इनको बहुत ज़्यादा खटकता है। साथ ही साथ there is a, आप देख रहे हो, इंडियंस आर द हाईएस्ट and the most successful immigrant community not only in US but the world over and consequently the highest taxpayers. तो इन्होंने, हमने पूरी दुनिया में उनके सेटिंग में जा करके अपना मादा प्रूव करा है। तो इनके पास ना अब हमारी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को क्वेश्चन करने के लिए मैट्रिक्स बहुत कम बचे हैं। इसलिए जो है ये अब इन सारी एंसिलरी चीज़ों का यूज़ करके कि तुम गंदे हो या स्ट्रीट शिटर्स, तुम ये सब हो, ये चीज़ें यूज़ करके ही हमें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। बट गाइस बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। इट्स नॉट दैट कि सारी गलती ना दुनिया की है, हम भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं है एंड सम ऑफ अस आर रियली वर्किंग हार्ड टू रूइन द इमेज दैट इंडियंस इन इंडिया हैज़ ग्लोबली। मैं आपको 2-3 पॉइंटर्स बताता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट एंड सबसे नंबर 1 पॉइंट जो कि एक रेकरिंग थीम है ग्लोबली वर्ल्ड ओवर इज दैट इंडियन कॉल सेंटर्स एंड स्कैम कॉल सेंटर्स। देखिए होता क्या है कि नॉट ओनली इज दिस अ मेजर न्यूसेंस ग्लोबली स्पेशली इन यूएस, बट दीज स्कैम कॉल सेंटर्स ऑल्सो टारगेट सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज ग्लोबली, राइट? मतलब ये एल्डरली ग्रुप्स को टारगेट करेंगे या कम एजुकेटेड लोग जो टेक्निकली उतने प्रोफिशिएंट नहीं है उनको टारगेट करेंगे। और जब ऐसे लोग, अब आप किसी की दादी नानी के पास से उनकी पेंशन का पैसा खींच लोगे, आप खुद इमेजिन करो किसी ने लूट लिया, आपको कितना गुस्सा आएगा। सो व्हेन दे एक्सपीरियंस दिस एंड मेजॉरिटी इफ 80% ऑफ द टाइम इट्स एन इंडियन डूइंग इट, तो ऑफ कोर्स दे विल बी पिस्ड ऑफ। सेकंड चीज, मतलब इंडियंस आर नोन वर्ल्ड ओवर टू क्रिएट अ रक्कस। मतलब ये ना सिर्फ हमारी बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा नाच गाने की चीजें दिखती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये हमारी आदत, देखिए हम सबकी आदत है कि हमारे यहाँ जो भी होता है ना वो सड़क पे जाकर के ही होता है। किसी शादी होगी तो बारात सड़क पे निकलेगी, पब्लिक स्पेस में निकलेगी, फिर चाहे अब वहाँ पे जाम लग जाए, फिर चाहे वहाँ पे क्या कहते हैं कोई एम्बुलेंस जा रही हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, बारात निकल रही है, नाच गाना हो करके ही जाएगा अंदर। किसी की मैयत चढ़ रही है वो भी सड़क पर से ही निकलेगी, भाई को नमाज देनी वो भी सड़क। मैं इसमें रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ भाई पूजा जब होती है, पंडाल लगते हैं, तब भी ये सब होता है। तो पॉइंट ये है कि हमें ना चीजें सड़क पे करने की आदत है। और खासकर अब से जो ना ये रील्स का एक जो ऑनलाइन पोस्टिंग का एक ट्रेंड चल गया ना, दिस हैज रिमूव्ड ऑल शेम फ्रॉम आवर पीपल। अभी आप रिसेंटली देखिए आईफिल टावर पे जाकर के लोग नाच रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, या अभी एयरपोर्ट के बाहर मैंने देखा लोग भांगड़ा कर रहे हैं। अरे क्यों भाई, तुम एयरपोर्ट पे आईफिल टावर तुम अकेले देखने तो नहीं आए हो, 40 दुनिया देखने के लिए। तुमको पसंद है नाच गाना करना एक बात है, लेकिन दुनिया को तो देखना पसंद है ना भाई, शांति से। वो लाइटिंग देखने आया है, हवा एंजॉय कर रहा है, तुम वहां पे जाके डांडिया खेल रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया इज कैटेगोरिकली अनसेफ फॉर वुमेन एंड दिस हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन। हमें तो, और देखिए आप जाकर के अभी काउंटर पॉइंट लेकर के आ जाएंगे कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी वाइज देखें कि हमारा पॉपुलेशन इतना है तो इतनी चीजें होती हैं, बट ये हम सबको जो यहाँ रहते हैं, मेरे आपके जैसे लोग, ये हम सबको पता है कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, कैटेगोरिकली अनसेफ फॉर वुमेन। आप पिछले 4 महीने का ही न्यूज़पेपर उठा करके देख लें, न्यूज़ क्लिपिंग्स उठा करके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। आरजी कर केस हुआ है, कोलकाता लॉ कॉलेज केस हुआ है, हैदराबाद में अभी केस हुआ है। अभी उस लड़की ने अपने आप को जला दिया भाई, बिकॉज कोई मोलेस्ट कर रहा है उसका टीचर ही उसे। आए दिन और मोलेस्टेशन के केस सामने आ रहे हैं। हमने टूरिस्ट्स को नहीं बख्शा। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, कल्चर इज वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया। तो और आपको क्या लगता है कि आप ये सारे लॉजिक दे करके कि प्रोपोर्शनैलिटी और परसेंटेज और ये सब दे करके ये चीजें छुपा लोगे क्या? भाई ये चीजें नहीं छुपती हैं, ये दिख रहा है लोगों को, आए दिन केसेस सामने आ रहे हैं। तो और ये चीज एक मेजर लाइक दुनिया में आपकी इमेज खराब करता है, और हमें ये बात समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप चाह के भी इसको झुठला नहीं सकते हो। चौथी चीज, लैक ऑफ सिविक सेंस। ये भी एक कैटेगोरिकली ट्रू बात है दैट इंडियंस लैक सिविक सेंस।
मैं जाता हूँ बहुत रेगुलरली अपने काम के लिए, पहाड़गंज, मोरी गेट, दादर भी जाता हूँ मैं, दिल्ली। आप देश का कोई भी मेट्रो उठा करके देख लो, छोटे शहर तो अलग ही हैं, आप मेट्रो ही उठा करके देख लो जहाँ पे ज्यादा एक्सपैट जनता और ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, एटलीस्ट लैंड करते हैं, आप वहां पे जा करके हालत देख लो उन जगहों की। हर जगह इट स्मेल्स ऑफ यूरिन, हर जगह इट स्मेल्स ऑफ लाइक गार्बेज, सड़क पे कचरा बिखरा पड़ा है, एंड वी डोंट हैव सेंस। देखो बात सिर्फ इतनी है कि अगर तुम बाहर जाकर के सिविक सेंस अपना मेंटेन करोगे, दैट डज नॉट क्रिएट एन इंप्रेशन ब्रो। इफ यू शिट इन योर ओन हाउस एंड पीपल नो दैट यू शिट इनसाइड योर ओन हाउस, then even no matter how clean you are outside, they will know that you are a person who does not keep his home clean. So they don't expect you to keep their place clean, and ये इमेज आपसे स्टिक करेगी। देखिए ले दे करके ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है that we are entering a phase where India is going to be on its own going forward. We have become the 4th largest economy. We are targeting to become the 3rd largest in next 3 to 4 years. जब आप एक ऐसे स्टेज पे ग्लोबल इकोनॉमिक और पावर स्ट्रगल में घुस जाते हो, there is no nation that will come to your help. In fact, everyone has a vested interest in seeing you fall. US does not want to create another China. China does not want another competitor. Europeans, although they don't matter, they don't like it. They don't like that India is growing. जब जयशंकर जाकर के मीटिंग में बोल करके आते हैं कि Europe thinks that the world's problem, that Europe's problems are the world's problem and the world's problems are not Europe's problem. जब जयशंकर ऐसी बातें करके आते हैं तो यूरोपियंस को चिढ़ होती है भाई. They have been our colonial masters for years. Do you think they like it? So no one is coming to our support here. तो पहली चीज कि ये रेसिज्म ग्लोबली बढ़ेगा ही बढ़ेगा बिकॉज इसके रीजंस हैं. बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि हमको अगर अपनी इमेज सुधारनी है तो उसका बीड़ा और जिम्मा हमको उठाना पड़ेगा. वी हैव टू बिकम बेटर, एज प्लेन एज दैट. और हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई सरकार को हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो चीज़ें बेटर कर देगी. मैंने पहले भी अपने एक वीडियोस में कुछ ये बातें कही हैं कि हमें आदत है माई बाप के सरकार की. हमने टैक्स दे दिया, हमने वोट दे दिया, अब जो करे वो सरकार करे. भाई देखो ऐसा है, सरकार तुम्हारे लिए ना टॉयलेट बना सकती है लेकिन तुमको जाके कमोड पे बैठा नहीं सकती है. सरकार तुम्हारे लिए डस्टबिन बना सकती है बट तुम्हारे हाथ से कचरा उठा करके डस्टबिन में डाल नहीं सकती है ना. तुम जा करके पान थूकोगे पीकोगे तो ये सरकार तुम्हारे सामने कटोरा या पीकदान लेके तो खड़ी हो नहीं जाएगी भाई इसमें थूको, सड़क पे ना थूको. तुम सरकार जो है लॉज ला सकती है टू कर्ब दिस काइंड ऑफ बिहेवियर. लेकिन अगर भाई जनता में ही इतनी ठरक बसी हुई है, जनता ही नहीं समझने को तैयार है, हैवानियत पे उतरी है, तो कितने लोगों को बचाएगी यार सरकार? कितने जेल बना लेगी, कितने केसेस हल कर लेगी? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि दुनिया को जितनी गाली देनी है दे लो. इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग, सेज समथिंग रॉन्ग, यू शुड ऑफ कोर्स काउंटर इट. बट द पॉइंट इज कि अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना जरूरी है और अपनी इंप्रूवमेंट खुद करने की जिम्मेदारी और बीड़ा उठाना भी जरूरी है. ये कोई सरकार, कोई ट्रंप, कोई मोदी आकर के नहीं कर सकता है. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमेज एंड वी हैव टू इंप्रूव इट.